Hello students, how are you? So today we are going to discuss about the question number 4 of exercise 7.1. Given is there, figure is there. So given says that L is parallel to M. So this is L and this is M. So these two lines are parallel lines. Okay. P parallel to Q. This line is P, this line is Q. They are parallel to each other, right? You have to prove that triangle ABC is congruent to triangle CDA. ABC, this triangle is congruent to this triangle. Okay, my dear students? Now, well, I told you, you see what you want, don't see the entire figure. So in the first case, we will consider that this line and this line, L is parallel to M, okay, and you can imagine that AC is the transversal. So when AC is the transversal, this angle, this angle is equal to this angle. Clear बच्चों? तो इसको बोलते हैं alternate interior angles. So that means what you have to consider? You have to consider first that L is parallel to M and AC is ट्रांसवर्सल. ठीक है बच्चों, सारा फिगर मत देखिए ये है L और ये है M and this is A and this is C. तो you can say that this angle is equal to this angle. जो यहाँ पे this angle equal to this angle. So what is the name of that angle? Tell me. Angle DAC. ठीक है बच्चों, तो you will say that angle DAC is equal to BCA. एंगल BCA. आप क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है बच्चों. सिमिलरली नाउ यू कंसिडर दिस टू लाइन्स आर पैरेलल. व्हाट इज द नेम? P and Q. अगेन this is A and this is C is transversal. So what can you say? Just imagine ये लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है. तो आप बोल सकते हो बच्चों सारा फिगर को देखोगे काम नहीं बनेगा, जो चाहिए उसी को देखिए. सो दिस टू एंगल्स आर इक्वल. तो यहाँ पे एक ये एंगल और ये एंगल. तो यानी आपको इस फिगर के अंदर में ये फिगर देखना है, तभी काम बनेगा बच्चों. अगर आप यही फिगर को देखोगे तो बिकॉज बहुत सारा इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको जो है इस फिगर के अंदर में इस फिगर को देखना है. तो व्हाट विल यू से? टेल मी. यू विल से दैट P इज पैरेलल टू Q एंड AC इज ट्रांसवर्सल. ठीक है बच्चों. So what will you say now? You will say that angle, this angle you say first, because पहले हम ये ट्रायंगल के बारे में बोल रहे हैं, है ना. So DCA, angle DCA is equal to angle BAC. Angle BAC. Again you can say this is alternate interior angles. Is it clear, my dear students? Now if you see, so you can call this as A. So this is A. You can call this as S and S. AC is common, you see, and this you can call it as A dash and this is A dash. तो बच्चों ये हो गया. अब लेते हैं दो ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC, नीचे वाला ट्रायंगल है बच्चों
एंड ट्रायंगल CDA। अब बताइए ABC में कौन सा एंगल उससे इक्वल है? ये एंगल, इसका नाम BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC, एंगल DAC। बच्चों आप इसको लिख सकते हो प्रूव्ड, बिकॉज हमने ऊपर इसको प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट इज यू कैन टॉक अबाउट द साइड AC इक्वल टू AC। बच्चों इसको क्या बोलेंगे? कॉमन। नेक्स्ट साइड बच्चों, नेक्स्ट एंगल, दिस एंगल, व्हाट इज द नेम? BAC, एंगल BAC is equal to angle, what is the name of this angle? DCA, DCA. Again you will call this is, you can say this is proved. Therefore triangle ABC is congruent to triangle ABC। क्या ट्रैक दिखा रहा है बच्चों? A डैश ब्लैंक एंगल A डैश ब्लैंक एंगल A, CDA एंड द क्राइटेरिया इज ASA। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तो ऐसे करके आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। सो फर्स्ट यू हैव टू सी दिस, सो दिस यू कैन कॉल इट एज scene 1 or I will call it as figure 1 and this is figure 2, and by the property of SA you can prove that both the triangles are congruent. Is it clear? So I hope आपको बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट, लिख दीजिए इसको। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 7.1। okay, now go through the given. The given is very simple, L bisects angle A। तो ये है एंगल A बच्चों पूरा, and this is the line L। okay, so this line you know bisects angle A, that means upper half and lower half will be equal, you know that bisect means cutting the angle into two equal halves। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट गिवन इज L बाइसेक्ट्स एंगल A। इसका मतलब क्या हुआ बोलिए? ऊपर का एंगल QAB इक्वल टू नीचे का एंगल क्या है बच्चों? BAP, बाप, BAP। ओके, now we are going to enter into the true triangle in triangle APB and triangle BAP। okay, now tell me, बताइए, you see this angle is 90 degree angle, so this angle is 90 degree, this angle and this angle are equal because L bisects angle A। this side is common, AB is common because AB belongs to upper triangle as well, lower triangle as well। clear? so by the criteria AAS both the triangles are congruent। simple। तो बोलिए बच्चों क्या बोलेंगे सबसे पहले? एंगल BQA इज इक्वल टू BQA ऊपर का एंगल इक्वल टू BPA इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ से पता चला बच्चों? दिस इज गिवन। नेक्स्ट बताइए, एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PA, नहीं तो BAP लिख सकते हैं, BAP आप लिख सकते हैं, प्रूव्ड बिकॉज वी हैव प्रूव्ड दिस। ठीक है, नेक्स्ट इज AB इक्वल टू AB, रीजन इज कॉमन। सो यू कैन से दैट ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APB। APB का ट्रैक देखिए बच्चों क्या है?
ओके, तो फर्स्ट मैंने ऊपर का पार्ट लिखा है, तो आपको नीचे में पहले लिखना है सी दिस ऑल बिलोंग्स टू द अपर ट्राइंगल. ओके, सो अपर ट्राइंगल यू गिव एनी नेम. आई एम गिविंग AQB. सपोज आई गिव ट्राइंगल AQB. AQB में बच्चों व्हाट इज द ट्रैक A'A. तो यहाँ भी A', तो नाम क्या होगा APB. तो यू कैन राइट APB एंड द क्राइटेरिया इज AAS. तो हमने यूज़ किया 2 एंगल बच्चों, एक एंगल बचा है, एक साइड हमने यूज़ किया, 2 साइड बचा है. सो 2 एंगल मैंने यूज़ कर लिया, तो कौन सा तीसरा एंगल इक्वल होगा बताइए? दिस एंगल QBA. तो आप लिख सकते हो एंगल QBA इज इक्वल टू एंगल PBA. इसको क्या बोलेंगे बच्चों? CPCT. आई हैव यूज्ड 1 साइड, अदर 2 साइड्स आर लेफ्ट. तो मैंने ये यूज़ किया बच्चों, तो कौन सा 2 साइड इक्वल होगा बताइए? साइड यहाँ आपको देखना है AQ इक्वल टू यहाँ देखना है AP. ठीक है बच्चों, और QB सेकंड है QB, नहीं तो मैं इसको लिख सकता हूँ BQ इक्वल टू BP. तो कौन सा साइड इक्वल है बच्चों? आपको ये ऑर्डर से ही पता चलेगा. डोंट गेट फ्रॉम द फिगर, ट्राई टू गेट फ्रॉम द ऑर्डर. सो दिस टुगेदर यू कैन कॉल इट एज CPCT. मैंने तीनों लिख दिए बच्चों, लेकिन आपको यही फिगर चाहिए, यही चाहिए था BP इक्वल टू BQ. तो यू कैन राइट ओनली दिस वन BQ इक्वल टू BP. ओके, तो लास्ट में क्या लिखेंगे? हेंस proved. Again it's very simple. You have proved that 2 triangles are congruent and you have got the CPCT. यानी 99% क्वेश्चन है बच्चों, एक ही काम करना है, 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और उसके बाद वहाँ से CPCT निकालना है. ठीक है, ओके. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बच्चों. समझ में नहीं आया है तो मेरे को कृपया करके कॉल करिए. मेरा नंबर है 9933227796 एंड काइंडली राइट कमेंट्स ऑल्सो. कमेंट लिखेंगे तो अच्छा लगेगा. वीडियो देखिए, साथ ही साथ कमेंट भी लिखिए बच्चों. ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड होप टू मीट यू in the next class.